Hello students, welcome to the lecture number 6. This is lecture number 6, lecture 6 I am writing here, I have not mentioned. So if you remember, we are doing DC circuit analysis. DC circuit analysis we are doing. In this DC circuit analysis, if you remember, in my previous video I have solved this circuit, RL circuit, resistive inductive circuit I have solved. And in this circuit, when the switch was closed, the current used to pass. The current nature was I0. It means when the switch is closed at t equal to 0, then what is the current I0? And the second was I infinity. That means the switch is closed for a long time, then the current will be I infinity. And the third intermediate was di by dt at 0 plus. So this also we calculated, di by dt at 0 plus. For that we framed the KVL equation. So आपको ये समझना है कि आपसे इस वीडियो में और आगे भी ये तीन चीजें पूछी जाएंगी. These three things will be asked always. This is the chapter under this lecture DC circuit analysis. This is the first part of calculating 1, 2 and 3 things. Sometimes d square I by dt square is also asked. That will come in your RLC circuit. So this RL is completed. Our today's target is to see RC circuit. But before that, this framework I have written here, that resistor will behave like a resistor itself. Just I am writing here at t equal to 0 also and t equal to infinity also. It will behave like a resistor only. Remember, inductor and capacitor. At t equal to 0 it will be open. At t equal to infinity it will be closed. This point, those points where the inductor is connected, these are the 2 points. Suppose between those 2 points, open and short, and here it is short and then open. Is it okay? So our today's today we have to examine RC circuit. This is second. First RL circuit we have done. If you remember, this here I have left also in your previous video also. This we will continue today. And suppose the question is like this: switch is closed at t equal to 0. Find. Now what is the thing to find? That is I0, I infinity. Okay, and some more things we need to find here, but I am not writing now. I will be telling you what are the things to find out, and I will mention here itself. The circuit is like this. This is the circuit. This is a switch. Like this you have to maintain it. This is the circuit. This is resistance, and this is the capacitance, and this is the voltage source. This is the voltage source. So what this switch is telling you now, in the further, at t equal to 0 switch is closed, then this is R, this is C. You have to find out these three currents. Now जब आप और सीनियर होते जाएंगे इस टॉपिक में, डीसी सर्किट एनालिसिस के टॉपिक में आप जब और सीनियर होते चले जाएंगे, उसके बाद आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि ये इस टाइप से क्वेश्चन शायद ना आए. आपको प्रैक्टिस करना है इस डायग्राम को देखकर ही. क्या प्रैक्टिस करना है कि ये एरो जो बना हुआ है, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंस का है. इस एरो का क्या मीनिंग है? इस एरो का ये मीनिंग है कि जब अभी ये बता रहा है कि एट टी इक्वल टू स्विच क्लोज हो रहा है. सपोज कीजिए कि ये एरो ऐसा नहीं होता, ये एरो कुछ चेंज होता, ये स्विच ऐसा होता, ऐसा है, और ये एरो ऐसा है सपोज. तो इसका मतलब क्या हो रहा है जानते हैं आप बात? स्विच इज, यहां पे लिखा होता स्विच इज ओपन एट टी इक्वल टू 0, बट ये अगर नहीं लिखा है, दैट मीन्स इस एरो से यू हैव टू आइडेंटिफाई कि पहले स्विच बंद था और अब आप आए हैं तो स्विच ओपन हो गया है. तो ये एक आइडेंटिफिकेशन वाला पॉइंट है जो अच्छे बेटर स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर ले जाते हैं, और आपको भी ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना है. ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू विद दैट प्रॉब्लम. अभी हम धीरे धीरे
प्रॉब्लम्स पे आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एग्जामिन RL, RC एंड RLC सर्किट। यहां पर देखिए स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। अगर ये सिचुएशन है तो क्या करेंगे? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा? सॉल्यूशन ये है हमारा इसका कि व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच बंद होगा एट, हम लिखेंगे यहां पर एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड। सही बात है। एट t इक्वल टू 0 स्विच, ये हमारा स्विच बंद होगा। सो एज द स्विच इज क्लोज्ड, तो ये क्लोज सर्किट बन जाएगा। तो क्लोज सर्किट बन जाएगा तो करंट फ्लो होगा। तो अभी हम पहले KVL लगाना चाहते हैं। अप्लाइंग, अभी हम ये नहीं लिखेंगे कि बिहेवियर क्या है, अभी हमें पहले हमेशा इक्वेशन नंबर 1 लिखना होगा। ये मैं सिखा रहा हूं और इसी ढंग से आपको यू हैव टू लर्न। तो अप्लाइंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इक्वेशन, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इक्वेशन। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इक्वेशन क्या होगी? पहले हम क्लोज सर्किट बना लेते हैं। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज योर कैपेसिटेंस, और यहां पर है आपका वोल्टेज। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज कैपेसिटेंस, दिस इज योर वोल्टेज। अब मैंने स्विच हटा दिया है, दिस इज अ क्लोज सर्किट। तो हम यहां पर इक्वेशन क्या लिख सकते हैं इस क्लोज सर्किट की, कि वोल्टेज बराबर जिसमें से जैसी करंट जाएगा, अभी करंट कौन सा जाएगा? हमने मान लिया कोई भी करंट आई जाएगा, तो करंट जाएगा तो प्लस माइनस VR डेवलप होगा, प्लस माइनस VC, मतलब वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस VR, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस VC। तो आपकी इक्वेशन बनेगी यहां पर V बराबर VR प्लस VC। तो V बराबर VR प्लस VC का क्या मतलब होता है? इसको अपन लोग लिख लेते हैं, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, हमेशा वो लिख लेंगे यहां पर। तो V इक्वल टू VR प्लस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt। यह आपको लिख लेना है। और VR, सॉरी मैं नहीं लिखा हूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसको मिटा के, V बराबर I इंटू R। मतलब वोल्टेज की इक्वेशन मुझे करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू कैपेसिटेंस लिखनी थी, लेकिन करंट इंटू कैपेसिटेंस कैपेसिटर के केस में नहीं होता है, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ करंट होता है, जो भी उस करंट के अंदर एंट्री करेगा। तो ओके, दिस इज यू हैव टू मार्क इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आपको मार्क करके यहां पर चलना है। नाउ लेट अस मूव अहेड। यहां पे मेरे पास अभी स्पेस है तो मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूं, यहां पर एक लाइन खींचकर। ठीक है, तो ये स्पेस है मेरे पास। तो इस स्पेस में मैं क्या करूंगा, अब एट t इक्वल टू 0 प्लस, एट t इक्वल टू 0 प्लस, t इक्वल टू 0 प्लस पर क्या हो रहा है ये अब मुझे देखना होगा। t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या हो रहा है? t इक्वल टू 0 प्लस पर हम अब बिहेवियर को स्टडी करेंगे। हम क्या बिहेवियर स्टडी करेंगे कि ये स्विच था, ये क्लोज हो गया, यहां पर रेजिस्टेंस था, यहां पर कैपेसिटेंस लगा था, आपको ध्यान होगा। यहां पर ये ऐसा है, आप उसी सर्किट को बिल्कुल वैसे ही बना लीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस का बिहेवियर रेजिस्टेंस है, वोल्टेज का बिहेवियर वोल्टेज है। जो कैपेसिटेंस लगा था वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। इट विल बी अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट हो जाएगा कि नहीं? अगर यहां इंडक्टर होता तो वो ओपन हो जाता है, कैपेसिटर है तो वो शॉर्ट हो जाएगा t इक्वल टू 0 प्लस के लिए। तो t इक्वल टू 0 प्लस के लिए शॉर्ट हो गया, तो करंट अलाउ हो गया है, प्लस और माइनस, वोल्टेज के प्लस और माइनस जुड़ गए हैं, प्लस और माइनस के बीच में क्लोज पाथ है। इसका मतलब I0 करंट एग्जिस्ट कर जाएगा और I0 हो जाएगा आपका V/R। तो ये हो गया आपका एक आंसर। करेक्ट स्टूडेंट्स? अब अगर तो मेरे को जो क्वेश्चन पूछा गया था, आप देखो I0 मैंने निकाल लिया है, I0 और I0 प्लस मैंने निकाल लिया है, दोनों सेम होते हैं हमेशा। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। एट I इंफिनिटी पूछा है मुझसे, तो एट t इक्वल टू इंफिनिटी अगर मैं देखूं, एट t इक्वल टू इंफिनिटी इफ आई विल चेक, देन व्हाट विल हैपन? कैपेसिटर का बिहेवियर डायग्राम में बना लेता हूं। दिस इज कैपेसिटर, यहां पर कैपेसिटर लगा था, यहां पर हमारा वोल्टेज सोर्स है। ओके, दिस इज योर वोल्टेज सोर्स, दिस इज योर रेजिस्टेंस, और ये हो गया है ओपन। ओपन क्यों हो गया? क्योंकि t इक्वल टू इंफिनिटी पर कैपेसिटर बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट। तो अब यहां पर हमारा करंट पास नहीं होगा। इफ करंट विल नॉट पास देन द करंट विल बी 0।
तो आई ऑफ इंफिनिटी विल बी इक्वल टू 0। ये आ गया है मेरा सेकेंड आंसर। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो आप प्लीज इस चीज को यहाँ पर नोट कर लीजिए। मैं पॉज कर लीजिए सॉल्यूशन को और नोट करते जाइए और अपने नोट्स बिल्कुल बनाते रहिएगा। मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक लेक्चर वाइज सीरीज बनाऊंगा और स्लोली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा, है ना। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस मच पार्ट। सो लेट मी रब, बिकॉज अब हमें पता करना है di/dt 0+। तो मैं इस पार्ट को मिटा देता हूं, इस पार्ट को बस। ये इक्वेशन की मुझे जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं फिर से लिख लूंगा उसको। आई विल राइट इट अगेन। ओके, सो नाउ सी अगेन द थर्ड पार्ट इज एट नाउ आई हैव टू कैलकुलेट डी। सपोज ये मुझे पूछा गया है फाइंड di/dt एट 0+। ये भी पिछले क्वेश्चन में पता किया था, इसलिए लेट अस फाइंड हियर आल्सो di/dt एट 0+। तो मैं उसके लिए मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, वो केवीएल इक्वेशन। क्या थी वो केवीएल इक्वेशन? v इक्वल टू i इंटू आर प्लस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ i dt। यहाँ पे प्लस कांस्टेंट भी आता है, लेट मी राइट इट। इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट तो आएगी। ये वो फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसको मैं कंटिन्यू कैसे करूंगा? v इक्वल टू आई आर प्लस 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी प्लस के। अब मुझे पता करना है di/dt एट t इक्वल टू 0+। तो एट t इक्वल टू 0+ लिखूंगा मैं, एट t इक्वल टू 0+। क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूं कि इस पूरी टर्म में मुझे कहीं ना कहीं di/dt दिख रहा है क्या? कैन आई सी di/dt? नहीं दिख रहा। कहीं पर भी देखो आप di/dt नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले मुझे कोशिश ये करनी है कि मैं di/dt लेके आऊं। इफ यू रिमेंबर हियर आरएल सर्किट में L di/dt ऑटोमेटिकली आ जाता था। जब L di/dt ऑटोमेटिकली आ जाता था तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि हम डिफरेंशिएट करें। लेकिन यहाँ पर वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन की जरूरत है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग above इक्वेशन। डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन। और जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? v का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, तो 0 इक्वल टू r इंटू di/dt। i का डिफरेंशिएशन हो गया r di/dt और टाइम कौन सा चल रहा है? 0+। सो r di/dt 0+ मुझे मिल गया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? i 0+, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ करंट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चला जाएगा, इंटीग्रेशन चला जाएगा, i अकेला रह जाएगा, i 0+/c। तो और कांस्टेंट ये जो है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो क्या मिल जाएगा? आप मुझे यहाँ देखिए, आप ये इक्वेशन मिल गई। अब मैं क्या करूंगा? r di/dt 0+ इक्वल टू हो जाएगा -i 0+ डिवाइडेड बाय c। अब आप बताओ क्या आपके, ये मैंने इक्वेशन को इस तरफ रीअरेंज कर लिया है इक्वल टू के। अब i 0+ की वैल्यू अपन को पता है, देखो क्या है यहाँ पर? v/r वी हैव कैलकुलेटेड। तो हम आगे यहीं पर आंसर निकाल देते हैं। di/dt 0+ जो होगा वो हो जाएगा माइनस i 0+ डिवाइडेड बाय, ये r नीचे चला जाएगा, यानी i 0+ डिवाइडेड बाय rc। और i 0+ क्या है? v/r है। तो v/r ये हो गया, और r नीचे आ गया यहाँ पर, दिस r विल कम डाउन, यानी r², और ये हो जाएगा c, v/r² c। सो दिस इज योर i 0+ क्या हो जाएगा? v/r हो जाएगा, सही बात है। तो v/r² c, ये आपका di/dt 0+ आ गया। तो क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था कि मेरे को di/dt 0+ भी पता करना है, लेकिन मैंने कर दिया di/dt 0+। कई बार आप क्वेश्चन में कुछ और भी चीजें पूछी जाती हैं स्टूडेंट्स, वो हमें देखना होगा। तो आप यहाँ पर एक पॉज के साथ इसको नोट कर लीजिए, ये 3 चीजें। और आई होप कि आपको समझ में आ गया है, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा बिहेवियर बस हम प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर
इनका RL और C का. So you can take a pause here and you can write the notes. Now इसके आगे क्या करना है, इसके आगे अब हम पता कुछ और भी करना चाहते हैं, बताता हूँ क्या. Let me rub it. Okay. So now सपोज एक्चुअली पहले ये यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा आपको. यहाँ पर थोड़ा सा लीक से हटके एक बात बता रहा हूं आपको. जो इंडक्टेंस होता है और जो कैपेसिटेंस होता है, इन दोनों चीजों में हमें कुछ स्पेशल चीजें पता करनी होती हैं. इंडक्टर डील्स विथ, आप लिख लीजिएगा, इंडक्टर डील्स विथ एनर्जी एलिमेंट. इसके अंदर जो एनर्जी एलिमेंट होता है दैट इज एनर्जी एलिमेंट, और जो एनर्जी एलिमेंट है वो है करंट. इंडक्टर डील्स विद द एनर्जी एलिमेंट करंट, और कैपेसिटर डील्स विद द एनर्जी एलिमेंट ENERGY, एनर्जी एलिमेंट वोल्टेज. दिस इज द व्हाट दीज थिंग्स डील्स विद. तो अगर ये ऐसे कुछ डील कर रहा है तो हम अभी कौन सा सर्किट सॉल्व कर रहे हैं, RC सर्किट. ओके, तो सपोज इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी जाती है हमसे, फाइंड dV/dt. वोल्टेज के बारे में भी तो पता कर सकते हैं. एक्चुअली कई लोगों के मन में ये डाउट आता भी है कि सर हम करंट जीरो पता कर रहे हैं, करंट इंफिनिटी पता कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ करंट पता कर रहे हैं. हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि dV/dt पता करें, वोल्टेज एट जीरो पता करें, वोल्टेज एट इंफिनिटी पता करें. बिल्कुल पता करना चाहिए और हमें करना भी चाहिए और करेंगे भी. बट ये जो टर्म्स हैं I0, I इंफिनिटी, di/dt, ये सारी जो टर्म्स हैं, इसके अलावा ज्यादा कुछ टर्म्स नहीं होती हैं. यही टर्म्स हमको पता करके चलना है. ओके, तो ये लेकिन जब वोल्टेज की टर्म्स हैं ये पूछी जाती हैं एग्जाम में कैपेसिटर के केस में, और करंट की जो टर्म्स हैं वो पूछी जाती हैं काय में, इंडक्टर के केस में. बिकॉज करंट इंडक्टर्स एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट इज योर करंट, और कैपेसिटर का एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट इज योर वोल्टेज. तो लेट अस फाइंड V. हम तीन चीजें पता कर रहे हैं अब इस क्वेश्चन में. ये तीन चीजें तो मैंने आपको सिखाई थी, इसलिए यहां पे पता कर दी. अब V0 पता करते हैं, V इंफिनिटी पता करते हैं, और dV/dt जीरो पता करते हैं. जीरो प्लस, ये जीरो प्लस और जीरो सेम चीज होती है. ओके, तो आगे बढ़े अगर, तो V0 प्लस, तो अब आप देखो एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड. एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड. तो स्विच अगर हमने क्लोज किया तो रेजिस्टेंस है एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड. तो स्विच अगर बंद हुआ है तो यहां पे था रेजिस्टेंस R, और ये है कैपेसिटेंस. स्टूडेंट, अब मैं इसको ज्यादा आपको डिटेल में एक ही सर्किट से बात समझाना चाहूंगा. यहां पर वोल्टेज था. अब एक बात बताओ, यहां पर कैपेसिटर लगा था, तो हमने कहा t इक्वल टू 0 ये शॉर्ट हो गया. कोई भी चीज जब शॉर्ट होती है इसका मतलब ये है कि वो अपने अंदर से करंट को पास कर रही है. इट इज अलाउइंग द करंट. तो करंट पास हो रहा था, तभी तो I0 जो था वो V/R निकला. करंट जो था उस समय हमने निकाला था वो क्या निकला था, V/R निकला था. लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर वोल्टेज होता, यहां पर वोल्टेज होता, तो करंट पास नहीं होता. शॉर्ट होने का मतलब ही ये है कि ये जगह पर वोल्टेज क्या है, जीरो है. क्यों है वोल्टेज जीरो? बिकॉज जीरो वोल्टेज होने के कारण ही तो इसमें करंट अलाउ होगा. मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको अब एक बार और यहां पर रिपीट कर देता हूं. स्टूडेंट्स, जब कोई चीज शॉर्ट होती है, शॉर्ट सर्किट होती है, तो वहां करंट तो पास हो जाता है, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह पर वोल्टेज जीरो होता है.
और अगर जब भी कोई चीज ओपन होती है तो करंट जीरो हो जाता है क्योंकि करंट पास नहीं हो रहा, और उस जगह पर एक वोल्टेज एस्टेब्लिश करता है। और अल्टीमेटली इसको दूसरी तरीके से भी देखना चाहिए कि यहाँ जो बैटरी लगी है उसका प्लस और उसका माइनस यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, यानी जो वोल्टेज यहाँ पर है वही वोल्टेज यहाँ पर है। समझ में आ गया होगा आपको। और अगर ये पॉइंट पे क्लियर नहीं है तो ये पॉइंट पर डाउट अभी अपनी डायरी में लिख लो। इन द डाउट सेशन जो नेक्स्ट होगा उसमें यू कैन आस्क मी ऑल दीज थिंग्स। सो V इक्वल टू जीरो, यहाँ पर अब मैं इसका आंसर समराइज करूंगा। वोल्टेज ऑफ V जीरो इक्वल टू जीरो प्लस विल बी इक्वल टू जीरो। अब अगर बाई चांस यहाँ देखो एक चीज पूछी गई है V इंफिनिटी। V इंफिनिटी का क्या मतलब हो रहा है कि V इंफिनिटी का मतलब ये हो रहा है कि करंट इज अलाउड टू पास। अब काफी देर बाद ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर ये ओपन हो जाएगा इस तरह से एट t इक्वल टू इन्फिनिटी पर, इसका मतलब क्या हो गया कि अब प्लस और माइनस का रिलेशनशिप टूट गया है। प्लस और माइनस का रिलेशनशिप अगर ये टूट गया है तो यानी कि ये प्लस अब प्रेशर यहाँ लगा रहा है, माइनस प्रेशर यहाँ लगा रहा है, इसको ये चार्ज हो गया है। चार्ज हो गया है किस वोल्टेज से हो गया है, V वोल्टेज से हो जाएगा। तो V इंफिनिटी क्या हो जाएगा, V इंफिनिटी हो जाएगा आपका V। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जितना बैटरी है वही V हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वाई इट विल बिकम V, बिकॉज इस वोल्टेज ने पहले शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट जाता रहा जाता रहा जाता रहा जाता रहा, और फिर काफी देर बाद ये जगह ओपन हो गई, यानी ये जगह फुल चार्ज हो गई। एक टैप है, नल पानी उसमें बकेट में भर रहा है, और जब वो फुल भर गया, बकेट में पानी भर गया तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और बैलेंस हो गया जब हो जाएगा तो देयर विल बी द अब उसमें पानी की जगह है नहीं, करंट नहीं जाएगा क्योंकि उसमें एक प्रॉपर वोल्टेज आ गया है। तो ये द कैपेसिटर इज चार्ज। अब तो इंपॉर्टेंट गेट के लिए जो पूछा जाता है, जैसे मान लो डिफरेंशियल टर्म पूछी गई dv by dt को पता करिए। व्हाट इज dv by dt? तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट dv by dt एट जीरो प्लस, इसको कैसे पता करेंगे? तो आपको अब यहाँ पर ये याद रखना होगा, कुछ चीजें आपको याद करनी होंगी। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अब यहाँ पर ही बस रिवीजन का पॉइंट है। ये मैं एक बार सब कुछ मिटा दे रहा हूँ। देखो, जब मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा, इंडक्टेंस की बात करूंगा और कैपेसिटेंस की बात करूंगा, तो कुछ इक्वेशंस हैं। V इक्वल टू आई इंटू आर वोल्टेज की, V इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी इसकी इंडक्टर की, और V इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी ये कैपेसिटर की। और अगर मैं करंट इक्वेशंस की बात करूंगा तो करंट की इक्वेशन यहाँ पे अलजेब्रा से सीधा हो जाएगा, V बाई आर डिवाइड कर देंगे हम, और यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, और वो आ जाएगा I इक्वल टू, यहाँ पर भी I इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ V बाई एल डी टी प्लस आ कांस्टेंट, और यहाँ आ जाएगा C इंटू डी वी बाई डी टी। तो देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने दोबारा से ये फॉर्मूला क्यों लिखे हैं, जब मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए लिखे हैं क्योंकि अब यहाँ पर एक बार और बताना जरूरी है। देखो डी आई बाई डी टी टर्म यहाँ पर आ रही है, इंडक्टर के केस में डी आई बाई डी टी टर्म यहाँ मिल जाती है डायरेक्टली, कैपेसिटर के केस में डी वी बाई डी टी यहाँ मिल रहा है, इंटीग्रेशन करंट यहाँ मिल रहा है, इंटीग्रेशन करंट और इंटीग्रेशन वोल्टेज यहाँ मिल रहा है, मतलब हर चीज हमें यहाँ मिल रही है। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड डीवी बाई डी टी। अब डीवी बाई डी टी तो मैं ढूंढना है, और सर्किट कौन सा है, सर्किट है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट यानी जहां पर भी कैपेसिटर कहीं लगा होगा और वहां तुम्हें डीवी बाई डी टी तक पहुंचना है, तो उस हिसाब से सोचना होगा। यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट। तो उस हिसाब से सोचने के लिए आप कैसे सोच पाओगे बताइए? उस हिसाब से सोचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डीवी बाई डी टी यहाँ मिल रहा है, तो डीवी बाई डी टी जीरो प्लस, तो आप यहाँ लिखेंगे करंट का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लिखिए I इक्वल टू, अब मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, देखो इसका इस चीज का सोल्यूशन बता रहा हूँ। करंट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, यहाँ दिख रहा होगा आपको ऊपर स्क्रीन पे। I इक्वल टू दिया हुआ है C इंटू डी वी बाई डी टी, सही बात है ना। अब यानी कि dv बाई डी टी पूछा गया है, यहाँ मिल गया, तो dv बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? dv बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी I अपॉन C, सही बात है कि नहीं? I बाई C, dv बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी I बाई C। अब dv बाई डी टी I बाई C, dv बाई डी टी जीरो प्लस पर पूछा है, dv बाई डी टी का पूछा है जीरो प्लस पर पूछा है,
तो dv बाई dt 0 प्लस पर पूछा है, इसका मतलब क्या हो गया, मैं इस चीज को थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं यहां पर, यस आई एम नॉट हैविंग स्पेस, dv बाई dt 0 प्लस पर पूछा गया है मुझसे, 0 प्लस पर इक्वल टू हो जाएगा आई, उस समय भाई dv बाई dt जब 0 प्लस से पूछ रहा है तो उस समय करंट भी 0 प्लस, तो आई 0 प्लस डिवाइडेड बाय सी। और आई 0 प्लस क्या है बताइए, आई 0 प्लस मेरा निकला था इस क्वेश्चन में, निकला था कितना निकला था, v बाय आर, v बाय आर शॉर्ट हुआ था, नहीं शॉर्ट हुआ था कि नहीं, तो आई 0 प्लस निकला था v बाय आर, तो यहां आ जाएगा v बाय आर सी। अब यहां पर एक चीज और दिमाग में आती है स्टूडेंट्स, मान लो आरएल सर्किट होता, ये होता आरएल सर्किट, मान लो पुराना क्वेश्चन है और इस आरएल सर्किट में तुमसे पूछा गया होता डीवी बाई डी टी, डीवीएल वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर, डीवीएल बाई डी टी, ये चीज तुमसे पूछी गई होती तो तुम कैसे ढूंढते, क्योंकि तुम्हें तो मालूम है कि डीवी बाई डी टी तो यहां मिल रहा है डायरेक्ट, डीवी बाई डी टी यहां मिल रहा है, कैपेसिटर के केस में 3 फॉर्मूले फिर से देख लो, डी आई बाई डी टी सर डायरेक्टली यहां मिल जाता है, और डीवी बाई डी टी यहां मिल जाता है, डी आई बाई डी टी यहां मिल जाता है, डीवी बाई डी टी यहां मिल जाता है, इंटीग्रेशन करंट यहां मिल रहा है, इंटीग्रेशन वोल्टेज यहां मिल रहा है, ठीक है। अब पूछा गया है जब कैपेसिटर की चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है सर डीवी बाई डी टी पता करने में, इंडक्टर के केस में डी आई बाई डी टी का पता करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर इंडक्टर के केस में अगर डीवी बाई डी टी पता करना है तब क्या करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर ये पॉइंट मैं आज के ही वीडियो में क्लियर कर दूं तो इट विल बी मोस्ट हेल्पफुल टू यू ऑल। आई थिंक यू हैव नोट ऑल दीज थिंग्स, और अगर नोट नहीं किया है तो अगेन पॉज लेके इसको नोट कर लो। मैं थोड़ा सा पुराना चीज बता रहा हूं, डीवी एल बाई डी टी कैसे निकालना पड़ेगा। तो किरचॉफ्स लॉ अगर हम लिखें इस चीज का तो क्या मिलेगा, वी इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, और v इक्वल टू हो जाएगा आई आर